Welcome students, welcome to the Royal Coaching Institute. And today we continue our crystallized and fluid intelligence. Okay? So जो आप previous videos नहीं देखे हो वहाँ मैं introduction part इस crystallized and fluid intelligence का discuss कर चुकी हूँ. You can watch, right? So let's we know more and more information about the crystallized and fluid intelligence. So this is what the crystallized and fluid intelligence. So here fluid intelligence. Fluid intelligence is often defined as a global capacity to reason. है ना, ये ग्लोबल कैपेसिटी है जिसके थ्रू से कि हम क्या कर पाते हैं, वी रीजन, वी लॉजिकली वी थिंक, लॉजिकली वी थिंक, हम थिंक कर पाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आर देयर, है ना. इट इज द एबिलिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स. फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें मालूम है कि हम जो रीजन करते हैं, जो लर्न करते हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीटली flexible learning environment is there, flexible reasoning, flexible ability to learn, it is the ability to apply our knowledge in a flexible way. Okay, there is no rigidity here. So the ability क्या हो रही है, it is the ability to learn, it's the ability to learn the new things through the help of the fluid intelligence. हम बहुत सारा new things हमें पता चल जाता है ना. It is the capacity to reason. हम आगे से पढ़े हैं. We well known about the fluid intelligence is responsible for reasoning and thinking and the mathematical calculations. Okay. Next हो गया हमारा, when you encounter an entirely new problem that cannot be solved with your existing knowledge, you must really earn fluid intelligence to solve it. है ना. अगर आप कोई भी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, when you encounter entirely a new problem, that what we have to do, then we cannot solve with our existing knowledge. हमारे पास अगर एक न्यू सा प्रॉब्लम आ गया है ना, एक न्यू प्रॉब्लम अगर आ गया हमारे पास, तो हम हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ थ्रू से वी कांट सॉल्व इट. हमें हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज के थ्रू से सॉल्व करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है ना. तो हमें क्या करना होगा, to solve this new kind of problem, we need the fluid intelligence. हमें flexible reasoning चाहिए, है ना, करंट नॉलेज चाहिए, हमें स्किल चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए जिसके थ्रू से we apply our knowledge, practical skills in a real life situation in a flexible manner. जब हम चीज़ों को flexibly, practically देखेंगे तो हम any kind of new situation, new problems जो भी हमारे environment में आए, whatever the new problems comes in front of us, we can solve that through our existing knowledge with our fluid knowledge. Not only the existing knowledge solved your new problems. This meaning is that only through the existing knowledge you can't solve it. Okay, you need some fluid intelligence, where you need some flexible knowledge, you need some practical abilities, practical skills, knowledge, okay, reasoning, thinking power that you have to solve. Okay. नेक्स्ट मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड. देखो, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस तो हम बहुत पढ़ ली कि हमारा फ्लेक्सिबल थिंकिंग है. ये क्रिस्टलाइज्ड है क्या? इट क्रिस्टलाइज्ड इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन स्टूडेंट. ये एक ऐसा सिचुएशन है दैट रिक्वायर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. It include reading comprehensions and the vocabulary exams. Let's see, crystallized intelligence एक ऐसा सिचुएशन है जो कि रिक्वायर्ड करता है. क्या रिक्वायर्ड करता है? crystallized intelligence required what the reading comprehension, मतलब पढ़ के रीडिंग करके we have to understand this.
This is reading comprehensions and the vocabulary exams are there, है ना. This is the verbal examinations are there, pronunciation exams, spelling exams, so many things are there, है ना. Synonyms, antonyms, okay, making words, making sentence, so many. Crystallized intelligence may include the reading comprehensions and the vocabulary exams. Okay, so here second हो गया, as we accumulate with the new knowledge and understanding, crystallized intelligence becomes stronger. हम पढ़े थे crystallized intelligence कब होता है, जब हमारा जो है एडल्टहुड तक पूरा, मतलब देखो एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो बिगिन होता है डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग उसका स्टार्ट हो जाता है, और डिक्रीज होता है जब फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एडोलसेंस टू द एडल्टहुड. हमारा मरते तक कौन सा हम यूज करेंगे, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, लेकिन एडोलसेंस तक, है ना, बर्थ टू एडोलसेंस तक हम पहुंच जाएंगे, रीच करेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. और फ्लूइड खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो जा रहा है हमारा crystallized intelligence. This is the crystallized intelligence. When the fluid intelligence is decreased, crystallized intelligence is increased. Okay? और ये क्या हो रही है, crystallized intelligence becomes stronger and stronger and stronger. है ना, ये accumulate करता है न्यू नॉलेज को, हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होता है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, स्ट्रॉन्ग, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. हमारा लर्निंग स्ट्रॉन्ग होता है, ये पावर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्ग. आवर लर्निंग इज सस्टेन, आवर लर्निंग इज रिटर्न थ्रू द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. ओके, let's see the picture. Some pictures are there. Fluid is like this and the crystallized picture is like this. देखो फ्लूइड क्या है, गैस की तरह है, एक हम क्या बोलेंगे, दिस अ काइंड ऑफ लिक्विड. लिक्विड का जैसा नो एनी डायरेक्शंस, जिधर आप ढाल दो उधर भग जाएगा, देयर इज नो डायरेक्शंस. इट्स लाइक ऑल्सो गैस ऑल्सो, देयर इज नो शेप साइज, देयर इज नो डायरेक्शंस, इट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल. बट द क्रिस्टलाइज को हम सॉलिड भी बोल पाएंगे, है ना, क्योंकि इसका जो है फिक्स्ड शेप ही है. सी द शेप, फिक्स्ड शेप एंड साइज. दिस इज crystallized. It's like a ice, and it's like a, what we can say, the liquid and the gases. Okay, so let's see. Fluid intelligence हमारा बोल रहे हैं. Fluid intelligence क्या है? It is the ability to reason. हम सोचते हैं, बहुत सारा thinkings are comes inside our mind, like the abstract thinking, logically, and solve the problems in new situation. New situation जो भी आए, है ना, एडोलसेंस तक हमारा जो भी प्रॉब्लम आती है, न्यू सिचुएशंस आती है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ द फ्लूइड इंटेलिजेंस. एंड हमारा जो इंडिपेंडेंट पावर है, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, है ना, डिवाइस स्ट्रेटेजीज फॉर डीलिंग विद द न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट एवर द न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स इन आवर लाइफ, वी सॉल्व दैट थ्रू द फ्लूइड इंटेलिजेंस. फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन, न्यू प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हेल्प करता है. इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी टू एक्वायर द नॉलेज. इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन, न्यू सिचुएशन where we solve any kind of problem, and through the fluid intelligence we are able to think logically. Okay, but when we talk about the crystallized intelligence, अगर हम देखें, crystallized intelligence क्या करता है, accumulate करता है, sum up करता है किसको, information को, skills को, strategies को, that we have learned through our experience, जो कि हमारा experience से learn करते 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 आ रहे हैं, है ना. हमारे एक्सपीरियंस में हम जो भी
जो भी थिंग्स लर्न कर रहे हैं, इट मे बी बैड, इट मे बी गुड, है ना, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, जो भी एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में, ये क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, सम अप करता है, सबको रखता है, जोड़ता है, और इट इज यूज्ड प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन एंड स्किल। क्रिस्टलाइज देखो स्टूडेंट्स, जब हमारा एडोलसेंस से एडल्टहुड तक ये जा रहा है, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, हम जितना सारा एडोलसेंस तक हम जितना सारा एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना, ये सब एक्सपीरियंस क्रिस्टलाइज में काम देता है। ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस वी कैन सॉल्व द न्यू काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड वी हैव टू ऐड सम न्यू नॉलेज on the basis of the previous knowledge, and we can solve any kind of problem, whatever the problems comes in our life. Okay, so this is a kind of difference between the fluid and the crystallized intelligence, and I think this is very much interesting concept for you, right? It is very much interesting. Next हो गया students SOI. Number 7 theories of intelligence is what? SOI, and the full form of SOI is what? The structure of intellect, and it was discovered by or the founded by, and the father we can say Guilford, J.P. Guilford. Okay, so here हमारे जो structure of intellect model है ना, it is a structure of intelligence. ये बोले हैं, ये जो हमारा है, ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हो, सी द बॉक्स, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, है ना, इट इज लाइक अ स्क्वायर बॉक्स, ये पूरा स्क्वायर बॉक्स की तरह बना है, एंड स्क्वायर बॉक्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस आर देयर, दीज आर व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. ओके, और ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, ये बॉडी के, ये माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है, गिलफोर्ड बोल रहे हैं, जो कि each cubes represent intersection of the operations, products and the content to create the 150 components of the intelligence. देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बोला जा रहा है कि ये जो है, ये जो गिलफोर्ड दिए हैं, ये जो देख रहे हो आप जी, जो स्क्वायर देख रहे हो, पूरा ये बड़ा सा स्क्वायर देख रहे हो, so many cubes are there, see the cubes, ये पूरा क्यूब्स है, ये जो क्यूब है हमारा, जो छोटे छोटे स्क्वायर जो है हमारे ये क्यूब बॉक्स में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, 150 कंपोनेंट्स आर देयर, 150 कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखो ये स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. वन इज ऑपरेशन, अनदर इज प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज कंटेक्स्ट, और वी कैन से कॉन्टेंट्स, है ना, ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स, कंटेंट्स. सो ऑपरेशन में आ जाता है हमारा कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और द इवैल्यूएशन. प्रोडक्ट्स में आ जा रहा है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस. कंटेंट्स में आ रहा है सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ऑडिटोरियन, विजुअल. सो दोज आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस. बस आपको इतना जानना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है ना, ये हमारा 150 कंपोनेंट्स को लेके पहले बना था, है ना. सो दीज आर द 150 कंपोनेंट्स जो हैं, ये हमारे पूरे बॉक्स के अंदर में आपका बॉक्सेस दिख रहा है. दोज आर हैव द 150 कंपोनेंट्स आर देयर, and all the 150 components are divided into the 3 parts. One is for the operation, the second one is product, third one is content. So I am already telling you ki what are the operation parts, what are the product parts, and what are the content parts. Next है हमारा 3D models. Which model? 3D model. 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस देखो स्टूडेंट्स, हमारा उसी का ही एक इंटीग्रेटेड पार्ट है. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का इंटीग्रेटेड पार्ट है 3D मॉडल, दैट इज 3 डायमेंशनल मॉडल वी कैन से, एंड ऑल मेंटल एबिलिटीज आर कॉन्सेप्चुअलाइज्ड विद इन अ 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क. ये बोलना चाहते हैं 3 डायमेंशनल मॉडल में हमारे
जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो है हमारा, है ना, दिस टॉकिंग अबाउट द 3Ds, है ना, 3 डायमेंशंस. एंड व्हाट आर द 3 डायमेंशंस? वन इज कंटेंट डायमेंशन, वन इज प्रोडक्ट डायमेंशन एंड अनदर इज ऑपरेशन डायमेंशन, है ना. वो पहले बोले क्या थे कि 150 स्ट्रक्चर्स आर देयर, बट now it's increasing and it's now in 180 structures. Now you have to give emphasis. 150 दिए थे लेकिन अभी 180 mental abilities are there, 180 structures are there. Okay, so let's see content क्या होता है. देखो, content are the type of information. प्रोडक्ट हो गया फॉर्म इन विच द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड. किस थ्रो से, कौन से वे से हमारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, रिप्रेजेंट किया जा रहा है. दिस इज द प्रोडक्ट. एंड ऑपरेशन हो गया टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म. हम जो किस किस तरह का मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज ऑपरेशंस. सो 5 kinds of contents are there, 6 kinds of products are there, and 6 kind of operations are there, and 5 6 are 30 and 36 are 180 mental abilities total are there. Okay, नेक्स्ट है हमारा गिलफोर्ड्स ओरिजिनल मॉडल was composed of 120 कंपोनेंट. देखो वही हम पढ़ रहे हैं अभी, वही जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो जेपी गिलफोर्ड दिए थे. लेट्स सी व्हाट आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन दैट एसओआई मॉडल. सो हमारे जो जेपी गिलफोर्ड थे ना, ओरिजिनल जो उनका मॉडल था वो 120 को कंपोज किए थे. 120 मॉडल उनका पहले से था, बिकॉज ही कंबाइंड द विजुअल एंड ऑडिटरी को कंबाइन कर दिए थे, है ना, a content in a figural content and combine the memory, है ना. वो जो मेमोरी पार्ट को ऑलियो मेमोरी रख दिए थे, लेकिन जब उनका 120 से जब 150 हुआ, देन 180 हुआ, तब वो क्या कर दिए, मेमोरी पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. दैट इज व्हाट द विजुअल एंड द ऑडिटरी. Then recording and memory retention in a common memory operation. और memory में क्या कर दिए, visual and auditory content in a common figural content. He combined memory recording and the memory retention. Okay, in a common memory. memory में रख दिए, क्या रख दिए, common memory, memory recording and the memory retention. So Guilford's model is an open system such as that is allows for newly discovered categories to be added in any of the theory's 3 directions. 3 directions जो हमारा content, operation and the product, ये 3 directions में ये theory क्या होता है, ये 3 dimensions में ये theory चलता है. सो आप लोग थोड़ा देख लेना, जो गिलफोर्ड जो है उनका ओरिजिनल मॉडल वाज कंपोज्ड ऑन 120 है कंपोनेंट्स था, 150 हुआ, देन 180 हो गया. जो कुछ पार्ट्स थे जो क्या किए हैं हमारे जो जेफी गिलफोर्ड्स हैं, उनके धीरे धीरे चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है. इंक्रीज हो रहा है एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. सो ही कंबाइंड द विजुअल एंड ऑडिटरी को मेमोरी में कंबाइन कर दिए थे, है ना, कंटेंट इन अ फिगरल कंटेंट. एंड ही कंबाइंड द मेमोरी को, मेमोरी रीडिंग रिकॉर्डिंग एंड द मेमोरी रिटेंशन इन ए कॉमन मेमोरी ऑपरेशन. मतलब सबको कंबाइन जो कर दिए थे, कंबाइन जो ये अलग अलग हुआ है, 150 से 180 जो हुआ है, 120 से 150 जो इंक्रीज हो रही है, ये एक थिंग को ये डिवाइड कर दिए हैं, है ना. सो मेनी ब्रांचेस आर देयर एंड सेम थिंग इज रिटन हियर, बट द ब्रांचेस आर व्हाट, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. 120, 150 एंड द 180 नाउ. नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे थॉर्नडाइक्स. थॉर्नडाइक्स का क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक्स. याद रखना स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, है ना, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड द फाउंडर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी.
वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थॉर्नडाइक है कौन? ये है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं थॉर्नडाइक्स, एंड फाउंडर है बिहेवियरल साइकोलॉजी के भी फाउंडर हो रहे हैं हमारा थॉर्नडाइक। ओके, so he started his research with animals using the stimulus and response classic conditioning, or we can say classical conditioning, and developed the ideas of connectionism, है ना। देखो हमारा जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक क्या किए थे? क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमारा लर्निंग थ्योरीज है, बिहेवियरल, हमारे जो स्कूल ऑफ बिहेवियर है, Thorndike is one of the most important psychologist or the behaviorist in that school, है ना। और हमारे जो 1928 में क्या हुआ था, Thorndike conducted the first major study with adults. एडल्ट लोगों के साथ Thorndike पहले एक स्टडी किए थे, है ना। और वो डेवलप, कौन सा आइडिया डेवलप हुआ था? कनेक्शनिज्म आइडियाज वाज डेवलप्ड बाय whom? कनेक्शनिज्म आइडियाज वाज डेवलप्ड बाय Thorndike in her first time. Then see what is connectionism. देखो define learning as a connections or association of an increasing number of habits, and more complicated associations means higher level of understanding. Connectionism मतलब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़े नहीं है, फिर भी I'm advancedly you discussing with you कि connectionism होता क्या है? कनेक्शन, चीजों के बीच में कैसे कैसे कनेक्शन होनी चाहिए, कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, उनके बीच में कनेक्शन, मोर एंड मोर कनेक्शन, मोर एंड मोर रिपीटेशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जब उनके बीच में ज्यादा कनेक्शन होगा, देन द बिहेवियर भी उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ज्यादा बिहेवियर भी स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ज़्यादा कनेक्शन भी उन लोगों के बीच में स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग कनेक्शन शुड बी देयर, स्ट्रांग एसोसिएशन इज ऑल्सो देयर। उन लोग एक दोनों के साथ क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे, बोथ द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, है ना। दीज आर द कनेक्शन, मतलब स्टिमुलस के साथ कैसा, रिस्पॉन्स का कैसा कनेक्शन है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, है ना। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का कैसा कनेक्शन है? दिस इज द कनेक्शनिज्म विच वॉज the idea developed by the what? Thorndike. देखते हैं यहाँ थॉर्नडाइक जो है ना, थॉर्नडाइक जो है हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं थॉर्नडाइक, he believed that in almost every intellectual task some of the abilities are common and cause intercorrelation between the different tasks. Thus, according to him, intellect is coined of us separate factors, needs and independent. So let's see. Thorndike believe कर रहे हैं, Thorndike believe that almost every intellectual task, some of the abilities are common and is cause the intercorrelation between different tasks. मतलब for human being, as a human being और as an organism, एक organism अगर कुछ भी काम कर रहा है ना, तो उन लोगों के वो काम के बीच में कुछ रिलेशन होता है। सम रिलेशन इज देयर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्टिम्युलस एंड द रिस्पॉन्स। ये दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? मतलब कनेक्शन होनी चाहिए। विदाउट द कनेक्शन देयर इज नो कोरिलेशन और द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टास्क। सो दिस अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलेक्ट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेपरेट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके हमारे जो इंटेलिजेंस बनता है, इंटेलेक्ट बनता है, माइंड है ना बनता है, दैट इज द मीनिंग एंड द इंडिपेंडेंट। सो लेट्स सी, इंटेलेक्ट इज द कंस्टिट्यूट ऑफ सेपरेट फैक्टर्स। इंटेलेक्ट जो हमारा है, देखो थॉर्नडाइक बोले हैं इंटेलेक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स? 3 factors. And what are the separate factors are there? First one is numerical factor, second one is verbal factor, and third one is spatial factor. Numerical factor is our calculation, logical, mathematical power, geometrical power. Verbal association, it's like the poem, है ना, journalist, न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर जो कि बोलना होते, they are very much excellent in communication, they are very much good in words, sentence,
Okay, organize the letter, they're very much good परफॉर्म. एंड स्पेशियल हो गया जो कि रिलेटेड टू द स्पेस स्मार्ट इन्हें बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्पेस स्मार्ट बोला जाता है. स्पेशल फैक्टर लाइक द कारपेंटर, पेंटर. ओके, सो हमारे जो डेकोरेटर है ना, दीज आर देयर वर्ड द स्पेशल इंटेलिजेंस उनका होता है. तो थॉर्नडाइक बोल रहे हैं he developed intellect is constitute the so many kinds of separate factors like the numerical factor, verbal factor and the spatial factor. So numerical factor हम mathematically smart बोलेंगे और उन्हें number smart भी बोलेंगे. number smart भी बोलेंगे. verbal को हम word smart बोलेंगे और spatial को हम space smart बोलेंगे. Okay, so don't forget these points. Next हम तो पढ़े थे चाइल्ड EQ है ना, इमोशनल क्वेश्चन. सो लेट्स सी, इमोशनल क्वेश्चन तो पढ़ दिए, लेकिन इमोशन में और एक वर्ड होता है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? हु डेवलप द टर्म्स इमोशनल इंटेलिजेंस? व्हाई द इमोशनल इंटेलिजेंस इज needed? Why the emotional intelligence is important for your teaching learning process? That we have to know. Okay, so emotional intelligence जो है it refers to the ability to perceive, control and evaluate the emotions. ये हमारा love, anger, fear, anxiety, panic, sadness, happiness, जो भी हमारा अंदर में जो भी इमोशंस है, ऑल काइंड ऑफ इमोशंस, वट एवर द इमोशंस वी हैव, ये सब इमोशन को इवालुएट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस. देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल है ना, एक बच्चा क्या हो गया, एग्जाम में फेल हो गया. एग्जाम में फेल जब एक बच्चा हो गया, दो बच्चे हैं, दोनों एग्जाम में फेल हो गए. इनमें से एक बच्चा है जो कि किसी से बात नहीं कर रहा है, रूठा रूठा सा है, रो रहा है, रूम के अंदर में है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, सुनने को मिलता है कि वो बच्चा सुसाइड कर दिया. और एक बच्चा है जो कि ठीक है, एक दो दिन सेट हुआ, सेट होने के बाद लोगों से उसका फीलिंग एक्सप्रेस किया कि हाँ क्वेश्चन पैटर्न्स आर कम्प्लीटली, मतलब कुछ अलग आया था, अलग था, डिफरेंट था, ये एग्जाम तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेट्स वी स्टार्ट फॉर आवर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. ये बोला कि नहीं ये एग्जाम में नहीं हो पाएगा, मैं चलो और एक एग्जाम का प्रिपरेशन करता हूँ. लेकिन बट स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ चाइल्ड? ये दोनों चिल्ड्रन के बीच में, ये दोनों स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? ये इमोशनली वेरी मच पुअर. गुड स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट था, बट इट इज वेरी मच पुअर. इसका इमोशनल पावर नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच पुअर. वी कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी मच पुअर. लेकिन ये जो है इमोशनल पावर उसका स्ट्रॉन्ग है. उसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस पर्सन हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज ये इमोशनली क्या हुआ, इट इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मोटिवेशन इज देयर, करेजियस पर्सन इज ही, है ना. बट ये हो गया डिमोटिवेट हो गया, डिस्करेजियस हो गया, एंड लेस इमोशन इज देयर. मैंने वी कैन से द नेगेटिव इमोशंस इज देयर. इमोशनल इंटेलिजेंस आप उससे बोलोगे जिसका कि इमोशंस जो है क्या होता है, कंट्रोल्ड होगा, वो उसका इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा. एंड द स्ट्रॉन्ग इमोशन वी हैव, गुड इमोशंस वी हैव, पॉजिटिव इमोशंस वी हैव. मतलब एंगर नहीं चाहिए, सैडनेस नहीं चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, पैनिक नहीं चाहिए, एंजाइटी नहीं चाहिए. वी नीड लव, वी नीड करेज, वी नीड स्पिरिट, द स्किल, सो मेनी थिंग्स वी नीड दैट वी हैव टू. सो हमें ऐसा चीज को हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में कंसिडर करनी चाहिए जो कि हमारा पावर को, इमोशंस को स्ट्रांग रख रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया आप रो लिए और आप जॉब छोड़ दिए और आप स्कूल छोड़ दिए, टीचर डांटे मतलब स्कूल छोड़ो. What is this? कितना स्कूल छोड़ोगे? So आपको you have to manage, you have to develop your intelligence power according to your emotions. You have to develop that. So emotional intelligence refers to the ability to perceive, control and evaluate the emotion.
The theory of emotional intelligence was introduced by whom? थ्योरी जो इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का था ना स्टूडेंट्स, ये डेवलप किए थे पीटर सैलोवी, जॉन डी मायर इन द ईयर 1990, है ना. और फर्दर डेवलप एंड ब्रॉट टू ले पब्लिक बाय द डैनियल गोलमैन. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 3 नाम है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस तो कर दिए थे पेटल सैलोवी एंड जॉन डी मायर इन द ईयर 1919. बट यहाँ क्या हुआ है, ये फर्दर इमोशनल इंटेलिजेंस को फर्दर मॉडिफाई करके डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या किए, पब्लिक में बहुत पॉपुलर कर दिए कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज नीडेड एंड हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट, ये पब्लिक को बताए. हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट and we have strong emotions always and we have courageous emotions always. That's why we sustain our life in a happy way. So Daniel Goleman को father बोला जाता है emotional intelligence का. So don't be confused in Daniel Goleman. He was further developed and brought to the lay public. मतलब वो popular हो गया Daniel Goleman only because of the emotional intelligence, but introduced हुआ था theories of emotional intelligence first time by the Peter Salovey and the John D. Mayer. Okay, so students, आज हमारा क्लास हम यहाँ एंड करते हैं. अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ, then you ask me in comment sessions. You are completely free to ask any kind of questions, any kind of doubt you have. Okay, related to this topic. Thank you all. Thank you so much.